اس اجلاس کے صدر محترم، سبھاپتی، کنوینر، مدرسے کے ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر علاقے کے موقر اور معزز علماء کرام، اور بالخصوص ہم سے بار بار کانٹیکٹ میں رہنے والے اور مجھ سے اس جلسے کی تاریخ لینے والے جناب عبدالمتین صاحب، جو یہاں سے بھادو تک گئے اور پروگرام میں شرکت کیے اور وہاں سے رابطہ کیے، کانٹیکٹ کیے ہم سے، اور پھر پروگرام یہاں کا بک کیا انہوں نے آج 27 جنوری کا، اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے اس جلسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ سبھی احباب اور آپ لوگوں کی یہ بھیڑ جس کو دیکھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے اور تھوڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ آئے تو ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں سننے کے لیے، لیکن اس اجلاس کو شور اور شرابے کے حوالے کر کے اس کے مقصد کو آپ ختم نہ کر دیں، نشٹ نہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اب تک بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا، طلبہ کو بھی سنا ہوگا، نظمیں سنی ہوں گی، غزلیں سنی ہوں گی، تقریریں بھی سنی ہوں گی، اور مدرسے کا تعاون ہیلپ بھی کی ہوگی، آپ نے کلیکشن بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ نے اس مدرسے کے لیے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کو قبول فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ترقی اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے، اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے حفاظ کو، طلبہ کو اسلام کا سپاہی بنائے، اور سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں پر روک لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے کلیا چک، فرقہ اور اس علاقے میں مجھے تقریر کرنے میں، اسپیچ دینے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ کئی سالوں سے ہمیں سن رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن آپ کے اس دیار میں اور اس علاقے میں جب میں آتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی بولنے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ کون سی زبان سمجھتے ہیں اور میں کون سی زبان بولوں، اور اس زبان میں بھی ورڈز کو، جملوں کو کیسے استعمال کروں کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان، سہل سے سہل اور بہت ہی زیادہ آسان بھاشا میں میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں، یہ کوشش ہوتی ہے میری۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ کو بہت ہی سرل بھاشا میں کچھ باتیں بتاؤں، کیونکہ آپ آئے ہیں۔ یہ جو شور کر رہے ہیں، جو آوازیں ہو رہی ہیں، یہ بہت دیر تک نہیں ہوں گی، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ آدھے سے زیادہ پنجبہ چلا جائے گا، لیڈیز بھی چلی جائیں گی، جینٹس بھی چلے جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ صرف دیکھنے آئے ہیں بس،
اور جب میری بات ان کے اوپر سے گزرے گی، جب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ اپنے آپ چلے جائیں گے، ان کو بھگانے کی اور بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن جب تک یہ تھوڑی دیر تک ہیں تب تک مجھے بھی پریشانی ہے اور آپ کو بھی ہے، لیکن برداشت کریں۔ تو دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بنگال کا مزاج میں نے دیکھا ہے۔ کل بھی میں جہاں تقریر کر رہا تھا مدنی پور میں، اس سے زیادہ بھیڑ تھی اور تقریر ختم کرتے 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 40-50 آدمی رہ گئے تھے۔ تو وہی کنڈیشن تھی۔ پھر مجھے پوچھنا پڑ رہا تھا ان سے، بتاؤ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تب پھر میں پوچھتا ہوں ان سے، پھر میں کہتا ہوں بولو۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خاموش رہیے، جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بولیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں۔ تو میں مزاج سے واقف ہوں، اللہ کرے کہ یہاں الٹا ہو جائے، لیکن ابھی تک 15-20 سال کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آدھے سے زیادہ تو پنڈال صاف ہوا ہے اور لگتا ہے کہ آج بھی ہوگا۔ اس وقت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ لوگ بیٹھ جائیے، کیونکہ سب کھڑے ہیں وہ تو چلے ہی جائیں گے، جو بیٹھے ہیں ان میں سے ابھی بیچ میں سے دیکھیے کتنے لوگ اٹھیں گے، ابھی سامنے سے بھی اٹھیں گے، کچھ بوڑھے لوگ بھی اٹھیں گے، بہانہ ہوگا پیشاب کا، لیکن چلے جائیں گے، اٹھیں گے نہیں۔ تو یہ عادت میں نے دیکھی ہے، جبکہ بیچ سے جب کوئی اٹھتا ہے تو کافی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سماج میں بہت سی برائیاں ہیں، نیکیوں سے زیادہ برائیوں پر روک لگانے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اس کی دلیل میں دوں گا، ہے قرآن میں نیکی کرو، قرآن میں یہ بھی ہے اچھے کام کرو، برے کاموں سے رک جاؤ، لیکن اچھے کاموں کا کرنا ضروری ہے، لیکن برائیوں سے رکنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسان جتنا برائیوں سے رکے گا اتنا ہی زیادہ نیک کام میں آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمیں بتایا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں آپ دیکھیں گے پہلے انکار ہے، بعد میں اقرار ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی شروع ہوتی ہے انکار سے۔ پہلے آپ کو سارے خداؤں کا اور سارے معبودوں کا انکار کرنا ہے، آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے؟ آپ کو پہلے اللہ کو نہیں ماننا کہ اللہ ہے، نہیں، پہلے آپ کو سارے خداؤں کا انکار کرنا ہے۔ جب سب کا انکار کر دو تب اللہ کو ماننا ہے۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ لا الہ، پہلے کیا ہے؟ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا الہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی پوجا کرنے لائق ہے ہی نہیں۔ میں ایک جملے کو کئی بار بول رہا ہوں تاکہ اللہ نہ سمجھو تو خدا سمجھو، خدا نہ سمجھو تو معبود سمجھو، معبود نہ سمجھو تو کچھ اور سمجھو، تاکہ کچھ تو سمجھو گے آپ۔ تو لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، پہلے سارے خداؤں کا انکار ہے، اس کے بعد پھر اقرار ہے، اس کے بعد پھر تسلیم کرنا ہے، پھر سویکار کرنا ہے۔ پھر کیا کہا؟ پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں، پھر کہا الا اللہ، ایک ہے سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے سب کا انکار کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی شروع ہوتی ہے، شکشا ہی شروع ہوتی ہے انکار سے۔ غور کرو، اسلام
माबूद नहीं, यानी इस वक्त आप अल्लाह का भी इनकार कर रहे हैं। ला इलाहा, कोई खुदा है ही नहीं। ला इलाहा कहकर अगर आप रुक जाएं और आगे का वर्ड ना बोले तो हम और आप सब काफिर हो जाएंगे, इसलिए कि हम अल्लाह का भी इनकार कर रहे हैं। ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं। बाद में क्या कहा? अब आपको मुसलमान होना है, मोमिन होना है, इस्लाम के अंदर एंट्री करना है, इस्लाम के अंदर प्रवेश करना है, तब आप कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी एक खुदा के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है। यह है इस्लाम की तालीम, पहले इनकार से। इसी तरीके से नेकियों का हुक्म है, लेकिन बुराइयों से रोकना उससे ज्यादा जरूरी है। नेकियों के करने का हुक्म सिर्फ इतना कहा, नेकियां करो, नेक काम में आगे बढ़ो, इतना कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने। लेकिन बुराइयों से रोकने के लिए क्या कहा मालूम है? फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। देखिए बुराई को रोकने के लिए कितनी सख्ती, कितनी सख्ती। जो शख्स किसी बुराई को अपनी आंखों से देखे, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो शख्स अपनी आंखों से किसी को कोई बुराई करते हुए देखे, कोई बुरा काम अपनी आंखों से देखे, उसको चाहिए फलयुगय्यिरहु बियदी, अपने हाथ से उसको दूर कर दे, अपने हाथ से मिटाए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो बुराई तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अपने हाथ से दूर करो। हाथ से दूर करने में झगड़ा हो सकता हो, फसाद हो सकता हो। मसलन किसी की बहन बेटी जीन्स वीन्स पहन के जा रही है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये बुरा फैशन है, अब हम खड़े होकर रोक रहे हैं, चल नकाब पहन, बुर्का पहन, पर्दा कर, ये शॉर्ट कपड़े हम नहीं पहनने देंगे, ये टाइट ड्रेस हम नहीं पहनने देंगे। अब उसके भाई, उसके बाप, उसके रिश्तेदार सामने आ गए, तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरी बेटी जा रही है, घूम रही है, हमारी मर्जी है, तुम कौन होते हो? फितना हो सकता है, फसाद हो सकता है। जर्जीस साहब तकरीर में जो बोलेंगे सब सुन लेंगे आप, लेकिन जर्जीस साहब रास्ते में होने वाली किसी बुराई को अगर रोकेंगे तो भी आप कहेंगे अरे यार वो कर रहा था, करने देते, तुम कौन होते? तुम कौन होते हो किसी को मना करने वाले? मसलन इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम के अंदर बारात का तसव्वुर नहीं है। अब किसी लड़के की शादी हो रही है, 200 आदमी बारात में जा रहे हैं, जर्जीस साहब कह रहे नहीं बारात गलत है, मत ले जाओ, लड़की वाले के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हो, मत डालो। अब लड़के का बाप ही कह रहा है तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं ले जा रहा हूं। लड़की का बाप मना नहीं कर रहा, बोल रहा कि लाओ, तुम कौन होते हो? जर्जीस साहब को जलसे में बोलने की इजाजत है, लेकिन सामने खड़े होकर किसी बारात को हम रोक नहीं सकते। फितना हो, फसाद हो, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? फिर फितना मत फैलाओ, फिर फसाद मत करो। अगर आप किसी बुराई को अपने हाथ से रोक सकते हो तो रोको, ठीक है। हम वहां की बुराई नहीं रोक सकते, रास्ते की बुराई नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर में अपने बेटे और बेटियों की बुराई तो रोक सकते हैं। अपने घर के तो हम मालिक हैं, अपने घर में होने वाले करतूत और गुनाहों से तुम अपने घर वालों को रोक सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर किसी बुराई को हाथ से दूर करने में डिफिकल्टी हो, परेशानी हो, फितना हो सकता हो, झगड़ा हो सकता हो, लड़ाई हो सकती हो, तो फिर हाथ से दूर मत करो। फ़बिलिसानिही, तो जबान से समझा दो।
मना करो भाई गलत है। देखिए बुराई फिर भी रोको, हाथ से रोको। हाथ से रोकने में अगर झगड़ा हो सकता है तो झगड़ा मत करो, तो जबान से मना करो। देख रहे हैं कितना जोर दिया बुराई पर कंट्रोल करने के लिए। और अगर जबान से भी कहने में बुरा लगता हो, जबान से कहने में भी फितना फैलता हो, जबान से कहने में भी अगर लड़ाई और झगड़ा होने का डर हो, जबान से कहने में भी तलवारें, छुरियां और पिस्टल और बंदूक निकलने का डर हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो फिर जबान से भी मत कहो। फिर तीसरा भी एक दर्जा बताया, फमन लम यस्ततिअ फबिलिसानिही व इल्लम यस्ततिअ फबिक़ल्बिही। और अगर जबान से कहने में भी अगर फसाद और फितना फैल सकता हो, डर लगता हो, तो फिर फितना मत फैलाओ, तो अपने दिल से बुरा जानो। मसलन कोई बेपर्दगी के साथ जा रही है, हम उसको मना भी नहीं कर सकते, हाथ से उस गुनाह को रोक भी नहीं सकते, तो दिल से बुरा जानिए, चुपचाप आंख फेर लीजिए, चले आइए और उस चीज को दिल से बुरा जानिए। लेकिन बुरा जानिए, बारात हम रोक नहीं सकते, जबान से कह नहीं सकते कि इतने आदमियों को मत ले जाओ। तो बारात की दावत आई है तो दिल से बुरा जानने का मतलब यह है कि मैं खुद नहीं जाऊंगा। नहीं साहब, नहीं, गलत है तो गलत है, नहीं जाऊंगा। लेकिन आप दिल से भी बुरा नहीं मान रहे हैं, बल्कि कहते और अच्छा भूल गए, मुझे बारात की दावत नहीं दी, कहते और हैं यहां। यानी अल्लाह के नबी फरमाते ज़ालिका, पूछो ये उलमा बैठे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। यानी किसी बुराई को देखकर हाथ से न रोक पाना, जबान से न रोक पाना, बल्कि दिल से बुरा जानना, दिल से बुरा जानना, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। लेकिन आज हमारे पास सबसे कमजोर दर्जे का भी ईमान नहीं है। आला ईमान क्या है? हाथ से रोको, नहीं रोक पाएंगे। उससे कम दर्जे का ईमान क्या है? जबान से रोको, और जबान से रोकने का की भी ताकत नहीं है, तो फिर ईमान का सबसे कमजोर दर्जा क्या है? दिल से बुरा जानना। ये तो लाइट वाला तो बड़ा, हम तो समझते हैं कि इंसान ही आंख मारता है, तो लाइट भी आंख मार रही है। ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का तीसरा दर्जा और सबसे कमजोर दर्जे का ईमान भी हमारे पास नहीं है। हम अपने ईमान का जायजा लें। मुसलमानों सुनो, एक चीज को कई कई बार बोल के हम आपके माइंड में हम अपनी बात को घुसा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। 50% तो आप समझ ही रहे होंगे, बस वही काफी है, इतना समझ लीजिए। औरतों के, लेडीज के पंडाल से कुछ आवाज आ रही है, अगर वो अपना कपड़ा, अपनी चप्पल, अपनी साड़ी दिखा चुकी हो तो थोड़ी देर खामोश हो जाए। मुझे मालूम है कि बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के आई हो, बता दिया होगा तुमने कीमती साड़ी इतने की आई होगी, ये चप्पल इतने की, ये लिपस्टिक इतने की। अब तो कुछ सुन लो। और मेरी तकरीर तो इतनी आसान हो रही है कि लेडीज भी समझ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, सबसे कमजोर दर्जे का ईमान भी हमारे पास नहीं है। इन जलसों में हम और आप किस लिए आए? ईमान ताजा करने के लिए आए। समाज में गौर करो, क्या कमजोर दर्जे का ईमान भी है हमारे पास? सबसे कमजोर दर्जा ईमान का वो भी नहीं है हमारे पास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको उसके गुनाहों के मुताबिक जहन्नम में सजा देने के बाद उसको जहन्नम से निकाल लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन किसको? जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। क्या हमारे अंदर कमजोर दर्जे का भी ईमान है? क्या सरसों के दाने के
برابر, کیا رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ایمان ہے. ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے پاس نمازوں کی کمی لے کر آؤ گے, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. روزوں کی کمی لے کر جاؤ گے, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اگر شرابی بن کر جاؤ گے, اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. زنا کا انبار لے کر جاؤ گے, اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے, کر دے گا. لیکن اللہ کے پاس اگر شرک لے کر گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ رب العالمین شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا, سارے اعمال کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے. کرے گا نہیں الگ مسئلہ, کر سکتا ہے. نمازوں میں سستی ہے, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. روزے میں سستی ہے, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. ہم نے شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا ہے, اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ہماری ماں بہن بیٹیوں نے بے پردگی کی, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ہم نے زنا کیا ہے, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں اگر ہم شرک لے کے جاتے ہیں, یہ پیشانی, یہ ماتھا, یہ سر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے چکایا ہے, اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم نے مشکل کشا اور اس کو حاجت روا مان کر سوال کیا ہے. اگر اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کہیں اور جھکی ہے, یاد رکھیے اللہ شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا. نو کمپرومائز, شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. شرک اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے. ارے ایک بار سیٹ کر دو بھائی, یہ بار بار کیا, یہ جیسے روک روک کر لائٹ دے رہا, آپ پیسہ بھی روک روک کر دیجیے گا, اس کو اگلے سال تک دیجیے گا. تو سنیے, ہم سماج میں ہیں تو غور کریں کہ ہم برائیوں کو کنٹرول کیسے کریں, یہ ذمہ داری ہے. اچھا, حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنا ہے؟ سنیے, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, بہت اچھا لگے گا. دیکھیے کسی برائی کو کیسے روکتے تھے وہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے. وہ تو خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, اور یہ بھی نہ سمجھ پاؤ تو سمجھ لو وہ چیف منسٹر تھے اپنے علاقے کے. ایک مسجد میں گئے, نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد ایک صحابی تھے, انہوں نے ایسے اپنی پگڑی اتاری, ایسے بالوں کو ایسے کیا جیسے آج کل ہمارا نوجوان لڑکا وہ فلمی ایکٹروں کی طرح ایسے. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ سامنے کے اس کے بال کافی بڑے ہیں. دیکھیے بال پیچھے سے تھوڑے بڑھائے جا سکتے ہیں, لیکن سامنے سے بال, جس کو ہم بولتے ہپی کٹ, پیشانی کے بال, سامنے کے بالوں کو بڑھانے کی اجازت نہیں. اس کے سامنے کے بال بڑے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بالوں کی اسٹائل کیا ہوتی ہے, پیچھے سے کٹ رہے ہیں ایسے, سامنے کے بڑھ رہے ہیں. اس کو ہمارے یو پی میں بولتے ہیں سور کٹ. یہ جو بال ہوتے ہیں نا, یہ سور کٹ بال ہے. اللہ تعالی فرشتوں سے کو حکم دے گا, اور قیامت کے دن یہ آگے کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کس کو؟ ابو جہل کے بارے میں فرمایا لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ, ہم اس کی پیشانی پکڑ کر, اس کا ماتھا پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے. معاف کرنا, ماتھا پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے. آپ پکڑ کے دیکھیے, پکڑ لے گے, ماتھا نہیں. ماتھے سے مطلب کیا ہے؟ بال.
आगे के। तो ये भी पता चला कुरान की आयत से, आगे के बाल बड़े करना ये किसी सहाबी की सुन्नत, किसी सहाबी का तरीका नहीं था, यह अबू जहल का तरीका था। अबू जहल बड़े बड़े बाल रखा करता था, और अबू जहल के बारे में हुक्म है कि हम उसको पेशानी पकड़कर, यानी आगे के बाल पकड़कर घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डालेंगे। तो अबू जहल की औलाद मत बनो। हजरत उमर फारूक ने जब उसके आगे के बाल देखे तो एक साहबी से कहा, जेब सिक्कीन, छुरी लाओ। वो छुरी लेके आए तो उस आदमी ने कहा, साहब क्या होगा? कहा तुम्हारे बाल काटता हूं। उस तरह लिया और पूरा उसका टकला कर दिया। कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे जा रहा हूं, छोटे कर लूंगा। फरमाया नहीं, घर पे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे बड़े बड़े बाल। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बुराई अपनी आंखों से देखो उसको अपने हाथ से मिटाओ। अब ये काम मैं करूंगा, अपने हाथ से ये बाल मैं काटूंगा। हजरत उमर फारूक ने उस तरह चलाकर उसको बिल्कुल टकला कर दिया। जबकि उसको इजाजत थी, वो कह भी रहा था घर जाने के बाद मैं बाल छोटे कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा, नहीं, मैंने देखा है, अब इस बुराई को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं, तो अपने हाथ से इसको मिटाऊंगा। आप करके देखेंगे? चलो जर्जीस साहब को इजाजत दीजिए, मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए एक एक करके बुलाऊं। क्या है इजाजत? अभी आप अपनी चप्पलों के साथ आएंगे और पीटना शुरू कर देंगे, कमीने। सीधे सीधे आया, कुरान हदीस सुना के जा, हम क्या कर रहे हैं हमें मेरे हाल पे छोड़ दे बस। आप ये इजाजत नहीं दे सकते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा, सरवाल पैजामा जो था वो टखनों से नीचे था। ये टखना होता है ना, ये आपके यहां इसको जो भी बोलते हो, ये टखने से नीचे था, टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने उसको आवाज दी, या अखी। पीछे थे इसलिए पहचान नहीं पाए कि कौन जा रहा है। आवाज दी, या रजुल, आए आदमी सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो समझ नहीं पाया कि हजरत उमर किसको आवाज दे रहे थे। ऐसे देखा, फिर आगे जाने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फिर आवाज दी। उसने कहा कि पीछे मुड़ के देखा, मुझे आवाज दे रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, ताल, इधर आओ। वो करीब आया। जब 10 कदम 15-20 कदम दूर पर रह गया तो हजरत उमर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अहाइज अंता। अरबी के जुमले देखिए, अहाइज अंता मतलब समझते हैं? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? पीरियड किसको आता है? लेडीज को। औरत को महीना आता है ना, एक महीने में चंद दिन उनके जो पीरियड के होते हैं, ये लेडीज को आता है, फितरत है, ये नेचुरल चीज है। तो हजरत उमर फारूक ने उससे कहा, अहाइज अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने देखा है, किसको कह रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो मर्द हूं। कि हजरत उमर किसको कह रहे हैं? किसी लेडीज से कह रहे हैं। ऐसे देखा तो आगे पीछे कोई लेडीज ही नहीं। कहा, अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा, तुमसे। हंसने लगा। जैसे हम और आप कभी कभी मजाक कर लेते हैं अपने दोस्तों से, वो समझा हजरत उमर हमसे मजाक कर रहे हैं। हंसते हुए क्या है, मतलब हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल। सवाल देखिए उसका, अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हो गया है? दिमाग ठीक है आपका? आप मुझसे कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तुमसे ही कह रहा हूं। तो वो हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, आपका दिमाग ठीक है? क्या मर्द को भी पीरियड आता है? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तो क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? सवाल जवाब देखिए,
کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم تو اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے گی، مرد نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نے کہا ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، قدم سے قدم ملا لو، پیر سے پیر ملا لو، اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لو، تب ہم مسجد میں جا کے اوپر کر لیا، کھول لیا۔ اللہ کے بندے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، نماز کے باہر بھی ہمیں اور آپ کو کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ اس نے کہا کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے نبی نے عورت کو دیا ہے، مرد کو نہیں۔ پھر ایک صحابی سے کہا یہ بھی سکین، چھری لاؤ، چھری آ گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین کیا کریں گے؟ کہا کہ یہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا اس کو میں کاٹوں گا۔ اس نے جلدی سے اوپر کیا اور کہا امیر المومنین دیکھیے میں گھر جا رہا ہوں، چھوٹا کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، اب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث پر میں عمل کروں گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو برائی اپنی آنکھوں سے دیکھو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو، مٹاؤ۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں امیر المومنین ہوں، مجھے یہ پاور ہے، میں اس برائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹا سکتا ہوں۔ چھری سے اس کا پیجامہ کاٹ دیا، پنڈلی کے برابر کر دیا، یہاں تک کر دیا۔ کہا جاؤ، اپنی آنکھ سے کوئی برائی آپ دیکھتے تھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرتے تھے۔ ہم سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کتنی طاقت ہے آپ کو، اور آپ کو سماج میں، آپ کے معاشرے نے، آپ کی سوسائٹی نے آپ کو کتنا پاور دیا ہے برائی کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کا۔ کوئی پاور ہے آپ کے پاس؟ بولیے۔ ہم علماء کے پاس ایک گاؤں میں 20 مولانا ہیں، بتائیے ان 20 علماء کے پاس کیا پاور ہے؟ کیا وہ بارات کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو کیا بارات کے خلاف ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں کہ جو بارات لے کے جائے گا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو باراتی بن کر آئیں گے ہم اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یا جو لڑکا جہیز مانگے گا، جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا، ہم ایسے لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پاور آپ نے دیا ہے؟ کیا ان علماء کے پاس وہ اتھارٹی، وہ پاور ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب یہ پاور آپ دے نہیں رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ پاور ہے نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کا کہنا جائز ہے، بجا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ارے مولوی لوگ تو خود اپنے لڑکوں کی شادی میں دہیج لیتے ہیں اور جہیز مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سماج کے اندر یہ برائی علماء اور عوام سب کے اندر، ہمارے اور آپ کے سب کے اندر ہے۔ اس برائی کو روکو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائی کو روکنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، یہاں تک آ گیا اپنی آنکھ سے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے دور کرو، یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے دور کرو، زبان سے کہنے میں بھی فتنہ و فساد ہو تو کم سے کم اپنے دل سے برا جانو، اپنے دل سے برا جانو۔ آج ہم دل سے بھی تو برا نہیں جانتے ہیں، دل سے بھی ہم برا نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اگر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ڈر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر ڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر، جب تک ڈر نہیں ہوگا ہم کسی برائی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ مثلا آپ دو آدمی لڑ گئے، اب ہمیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے، ہمیں پنچایت پنچ بنا دیا گیا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہم دو آدمی مل کر فیصلہ کریں گے، لیکن ان دو آدمیوں کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اس میں ایک ہمارا رشتہ دار ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے ایسا فیصلہ کیا جائے
हमारे रिश्तेदार पर कम से कम जो हमारा रिलेटिव है कम से कम उसके ऊपर आंच आए या उसको ज्यादा पेनाल्टी और जुर्माना ना देना पड़े, अब हम उसमें ऐसी कोशिश करें। यहां अल्लाह से डरने की जरूरत है। अल्लाह का डर होगा तो यहां इंसाफ की बात होगी, अल्लाह का डर होगा तो आप हक बात कहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे ये मेरा भाई है, आप ये नहीं देखेंगे ये मेरा बेटा है, आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा चचाजाद भाई है, मेरा खालाजाद भाई है। आप जो भी बात कहेंगे वो इंसाफ की बात कहेंगे, इसलिए कि यहाँ अल्लाह का डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुआशरे की, समाज की इस्लाह के लिए अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ सुनिए, नीयत खास होनी चाहिए अल्लाह के लिए। जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर है। तमाम आमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। तमाम आमाल का मतलब अच्छे अमाल का, बुरे अमल का दारो मदार नीयत पर नहीं है। आज आपको एक चीज और समझा दूं, अच्छे अमल का दारो मदार नियत पर है, बुरे अमल का दारो मदार नियत पर नहीं है। बुरा अमल बुरा ही रहेगा चाहे उसमें नियत कितनी ही अच्छी हो। बुरा काम अच्छा नहीं हो जाएगा अच्छी नियत की वजह से। मसलन एक गरीब लड़की की शादी होना है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, अब हम उसकी शादी कराना चाहते हैं लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोस में एक आदमी है, उसकी गोल्ड की, सोने की दुकान है, बहुत अमीर है। हम उसकी दुकान में चोरी करने के लिए चले गए। अरे यार 2-4 तोला सोना, 2-4 भरी सोना ले लेते हैं, एक गरीब लड़की की शादी कर देंगे, क्या बुराई है इसमें? गरीब की शादी हो जाएगी और इस आदमी के पैसे में क्या कमी, तो बहुत पैसे वाला है। हम घुस गए, थोड़ा सा सोना हमने चुरा लिया और सोना चोरी करने के बाद हम उस गरीब लड़की को दे देते हैं, उसके माँ बाप को दे देते हैं, लो अपनी बेटी की शादी करा दो। सोना हमने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, उस सोने को मैंने गरीब आदमी की बेटी के लिए दे दिया है। देखिए काम हमारा गलत था, नियत हमारी अच्छी थी। उस पैसे को, उस सोने को, उस चांदी को मैं अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, हमने अच्छे काम में पैसा खर्च कर दिया, सोना अच्छी जगह पर दिया, गरीब लड़की की शादी के लिए दिया, तो क्या ये हमारा अच्छा काम उस बुरे काम को जायज कर देगा? क्या चोरी को जायज कर देगा? नहीं, चोरी चोरी ही रहेगी। अगर हम पकड़े गए तो इस्लामी कानून के मुताबिक हमारा हाथ काटा जाएगा, अगरचे वो पैसा हमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया हो या न किया हो, हमने गरीबों ही को क्यों न दिया हो, हमने गरीब लड़की की शादी में क्यों न दिया हो, वो पैसा, वो सोना गरीब पर खर्च किया, लेकिन चोरी हमने की, पकड़े गए तो हाथ हमारा काटा जाएगा। इसलिए तमाम अच्छे अमल का दारो मदार नियत पर है, बुरे अमल का दारो मदार नियत पर नहीं है। बुरा अमल बुरा ही रहेगा, वो अच्छा नहीं होगा चाहे कितनी अच्छी नियत हो। हाँ भैया अब क्या परेशानी हो गई बेटा? ओ बेटा, अभी बाप कहता बेटा कह रहा हूं, तो सुन ही नहीं रहा है। अब क्या हुआ? अब तो बैठ जाओ। अच्छे भले बिल्कुल सही सुन रहे थे, फिर अब बाप भी बना चुका हूं, बेटा भी बना चुका हूं, अब क्या रह गया है? तो सुनिए, बुरा काम बुरा ही रहेगा, अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। हज करने जा रहे हो, अगर इसलिए जा रहे हो कि हमारे ऊपर फर्ज है और अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, चलो हज कर लेना चाहिए, तब तो ठीक है। अगर इसलिए जा रहे हो कि बहुत पैसा है, मोहल्ले वाले जूते मार रहे हैं कि देखो इतना अमीर होकर हज करने नहीं जा रहा है, कितना बड़ा कमीना इंसान है, इतना पैसे वाला होने के बावजूद हज नहीं कर रहा है, अब वो इस नियत से जा रहा है कम से कम लोगों के ताने न सुनना पड़े। अब आप हज करने जा रहे हो तो अब आपका यह हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, क्योंकि काम तो आपका अच्छा है लेकिन नियत अच्छी नहीं है। आपने
शनिचर को नमाज नहीं पढ़ी, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखे, सोमवार को मस्जिद में नहीं दिखे, मंगल को नहीं आए, बुध को बाजार में घूमते रहे, और जुमेरात को गुरुवार के दिन आप बाजार में दुकान पे बैठे रहे, पूरे हफ्ते आप मस्जिद में नहीं देखे, लेकिन जुमे के दिन 11 बजे मस्जिद में जाकर बैठ गए। आज मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, नहा धोकर अगली सफ में जाकर बैठ गए, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, सऊदिया का रुमाल भी गले में डाल लिया, अगले सब में आकर बैठ गए। अगर आप इसलिए गए कि आज जुमे का दिन है, बड़ा खैर व बरकत का दिन है, अल्लाह ताला पहले आने वाले को एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब से नवाजता है, अगर आप इसलिए गए तो अल्लाह के यहाँ सवाब पाएंगे। लेकिन आप इसलिए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए कि अगर हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले मोहल्ले वाले ये कहेंगे कितना नाकारा है, कितना कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, देखो कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान है, कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा धर्मी हो चुका है, उसको जुमे तक की नमाज नसीब नहीं होती है, जुमा तक नहीं पढ़ता है। आप इस मकसद से इसलिए मस्जिद में गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये नमाज की कोई वक़्त नहीं है, इस जुमे के दिन की नमाज की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में नहीं है। अच्छे काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह नियति को देखता है, अल्लाह नीयत ही को देखता है। कयामत के दिन इसी नीयत पर हमें और आपको उठाया जाएगा। फरमाया तकवा नीयत में भी होना चाहिए। इज़ल तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार। मुस्लिम शरीफ किताबुल जिहाद के अल्फाज पर नजर डालिए जो मैंने अभी पढ़े हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहर आ जाएं, गौर से सुनना, मैं स्पीड अपनी स्लो कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जब दो मुसलमान तलवार लेकर बाहर आ जाएं, हम छुरी कह सकते हैं, आज के जमाने में हम बंदूक कह सकते हैं, पिस्टल कह सकते हैं, खंजर कह सकते हैं। जब दो मुसलमान दो खतरनाक हथियार लेकर बाहर आ जाएं, वो इसको मारना चाहे, वो इसको मारना चाहे, ये इस पर हमला करे, वो उस पर हमला करे। इज़ल तक़ा मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारों के जरिए, अपने अपने खंजरों के जरिए बाहर आ गए और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो जाहिर है एक जीतेगा और एक हारेगा, एक पराजित होगा और एक विजय होगा, एक जीतेगा एक हारेगा, एक मारेगा और एक मरेगा। एक मर गया, एक ने मार दिया, दो निकले थे और दोनों ने हमले किए एक दूसरे पर, एक मर गया और एक मारा। अब कौन जहन्नम में जाएगा, मारने वाला या मरने वाला? आप कुछ भी कहें, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार, दोनों जहन्नम में जाएंगे। जो मर गया है वो भी जहन्नम में जाएगा, मारने वाला भी जहन्नमी, मरने वाला भी जहन्नमी। हालांकि मरने वाले ने मारा नहीं है, कायदे से अकल ये कहती है कि मारने वाले को जहन्नम में जाना चाहिए, क्योंकि मुजरिम तो मारने वाला है, उसको जहन्नम में जाना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं फल क़ातिल वल मक़तूल फिन्नार, मारने वाला भी और मरने वाला भी, कातिल भी और मक़तूल भी, दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये तो अकल में बात नहीं आ रही, जो बेचारा मर गया, जो मारा गया, जो कत्ल हो गया, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? हाज़ल कातिल, ये कत्ल करने वाला तो ये है, इसको जहन्नम में जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा, वो जा रहा है, मरने वाला भी जहन्नम में जा रहा, ऐसा क्यों? तो
अल्लाह के नबी ने जो जुमला कहा, जो वर्ड कहा, उसको सुने। आपने फरमाया मरने वाला भी जहन्नम में इसलिए जाएगा, इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबिही, क्योंकि मरने से पहले उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं इसको मारूं, वो भी ये चाहता था कि मैं इसको कत्ल कर दूं। इस नीयत की वजह से वो जहन्नम में वो भी जाएगा, क्योंकि मारने की नीयत से तो वो भी निकला था। तलवार, खंजर, पिस्टल, बंदूक तो उसने भी पकड़ रखी थी, वो भी तो मारना ही चाहता था। उसके दिल में भी ये नीयत थी कि मैं इसको मारूं। नीयत की वजह से जहन्नम में जाएगा। भाई आप हज करने की नीयत से निकल गए, घर से हज करने जा रहे हैं, रास्ते में मौत आ गई तो आपको हज का सवाब मिलेगा, इसलिए कि आप तो हज की नीयत कर चुके थे। आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, वुजू बनाया, मस्जिद तक पहुंचे नहीं, एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट आप इंतकाल कर गए, मर गए, तो आपको जोहर की नमाज का पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए क्योंकि आप जोहर की नियत कर चुके थे, आप तो निकले थे जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, आपने भले ही ना पढ़ी हो, उससे पहले आपको मौत आ गई, लेकिन जोहर की नमाज का सवाब आपको मिलेगा। यही है, आप घर से तलवार लेकर निकले उसको मारने की नियत से, भले ही आपने ना मारा हो, आप मर गए हो उसकी तलवार से, लेकिन जहन्नम में आप भी जाएंगे, क्योंकि नियत आपकी भी ये थी कि मैं अपनी तलवार से इसको मारूं। हाँ, सोचिए हम कितने गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है। हम जिना के इरादे से निकले, किसी लड़की ने बुलाया फोन करके, हम गलत काम करने के लिए निकले, नियत है गलत काम करने की, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हम मर गए, तो यहां अल्लाह ताला हमें जिना का गुनाह नहीं देगा। अल्लाह कहता है अगरचे तूने नियत की थी, लेकिन तुमने जिना किया नहीं था, इसलिए जब तक तू कर नहीं, यानी कोई बुरा काम करने का हमने इरादा किया लेकिन फिर उस काम को हम नहीं कर पाए, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा गुनाह नहीं लिखता जब तक कि हम उस काम को कर न डालें, लेकिन नेकी लिख लेता है ताकि मेरे बंदे की नेकियों में इजाफा हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है अपने बंदों के ऊपर। तो नियत तकवे के अंदर, तकवे में नियत शामिल है। हम अपनी जिंदगी के अंदर तकवा पैदा करें, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, हर ईमान वालों अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है। देखो जाने लगे ना, जो लोग जा रहे हैं यहाँ के लोग वहां बैठते जाएं, जगह मिलती जाएगी। तो देखो हमने कहा था ना बुजुर्ग लोग पहले उठेंगे। तो मेरे भाइयों, आज बहुत सिंपल और सादा लफ्जों में मैं आपको समझा रहा हूं। तकवे में नियत होनी चाहिए, नियत तकवे में नियत भी शामिल है, और तकवा नमाज में भी है, तकवा रोजे में भी है, तकवा हज में भी है, तकवा ज़कात में भी है, तकवा कुर्बानी में भी है। कोई भी इबादत बगैर तकवे के कबूल नहीं होती। नमाज में तकवा क्या है, अभी मैंने मिसाल दी है। अगर अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं तो काबिल कबूल, किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो यही नमाज इबादत नहीं बल्कि शिर्क हो जाएगी। दलील मन सल्ला युराई फकत अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सल्ला युराई, जिसने इसलिए नमाज पढ़ी ताकि लोग देखें, यानी मैं लोगों के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, यानी लोग क्या कहेंगे, देखो हज करके आ गया नमाज नहीं पढ़ता, और देखो मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता, और देखो हाफिज होके नमाज नहीं पढ़ता, अरे हज कराया फिर भी नमाज पढ़ने नहीं जाता। अब हम मस्जिद में जा रहे हैं, क्यों? अरे यार नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता। जर्जी साहब मस्जिद में चले गए, क्यों जा रहे हो मौलाना? अरे यार मौलाना हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ता। तो अब हम लोगों के डर
डर से मस्जिद में जा रहे हैं। अब ये नमाज नहीं, शिर्क है। अब हम अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह अकबर जो कहकर खड़े हैं ना, ये कयाम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के डर से आए। अब ये कयाम लोगों के लिए हो रहा है। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में गए, ये रुकू अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, ये लोगों के लिए हो रहा है। अल्लाह अकबर कहकर सजदे में गए, ये सजदा अल्लाह के लिए नहीं हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों के डर से नमाज पढ़ने के लिए आए। फरमाया मन सल्ला युराही फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। नमाज में तकवा होना चाहिए, रोजे में तकवा होना चाहिए। अभी 12 मार्च के आसपास रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। ये रोजे का क्या मकसद है? रोजे का क्या मकसद है? रोजा क्या हमें और आपको भूखा और प्यासा रखने के लिए आता है? नहीं। क्या अल्लाह ताला एक महीना हमें और आपको भूखा और प्यासा रखकर पूरे साल का रिस्क इकट्ठा कर लेता है कि एक महीना नहीं खिलाएंगे तो पूरे साल हमारा बैलेंस चलता रहेगा? इकट्ठा करता है? नहीं। रोजे का मकसद उसने खुद बयान किया कि हमने ये रोजे तुम्हारे ऊपर क्यों फर्ज किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, हमने तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर हमने फर्ज किए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, इन रोजों को फर्ज करने का मकसद ये है, इनको फर्ज करने का रीजन ये है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। हाँ, जितना रोजे में अल्लाह का डर पैदा होता है किसी और इबादत में नहीं होता है। आप मुझसे पूछ सकते हैं जर्जी साहब आपने जोहर की नमाज कहां पढ़ी? हम झूठ बोल सकते हैं साहब फला मस्जिद में पढ़ी। आप फला मस्जिद में गए, वहां के इमाम साहब से पूछा क्या मौलाना साहब आए थे जोहर में? यहाँ उन्होंने कह दिया नहीं, पता चल गया। हमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी पता चल गया। लेकिन कितने रोजेदार बेरोजेदार ऐसे हैं जो सुबह सहरी भी नहीं करते, रोजा भी नहीं रहते, लेकिन आपके साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं, खाते और पीते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये रोजे से है या नहीं है। रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जर्जी साहब मुंह बनाए हुए हैं, लेकिन जर्जी साहब के बारे में आपको नहीं मालूम कि अपने घर के फ्रिज से भी शरबत पी के आए हैं, अभी हलवा खा के आए हैं, आपके साथ बैठे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि हम रोजे से हैं, लेकिन रोजे से नहीं है। रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। लेकिन हाँ, अगर बंदा हकीकत में रोजे से है, अगर बंदा हकीकत में रोजे से है तो वो अल्लाह के डर से ही भूखा और प्यासा है। आपके डर से नहीं है, हमारे डर से नहीं है वो। देखिए एक मिसाल पर गौर कीजिएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, जाइए ताकि सुकून हो जाए। ये बूढ़े लोग बेचारे जा रहे हैं अपने घर, चाचा लोग चाचियां सब सो गई होंगी, क्या करेंगे जाके समझ में नहीं आ रहा। बैठे रहना चाहिए यहां बेचारों को चुपचाप। सुनिएगा, जो रोजा रख रहा है वो हकीकत में अल्लाह के डर से ही रखा हुआ है। बताऊं, देखिए सहरी की, सहरी और इधर अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जल्दी से उठे सहरी करके हम, अजान हुई फिर लेट गए। कुछ लोग ऐसा होता है 3-4 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, 3:30 बजे आंख खुल गई, जल्दी से खाया पिया फिर लेट गए, अजान हुई सुस्ती आ गई। अरे अल्लाह, इतनी देर के बाद। अच्छा कहाँ गए वो? एक साहब तो बेचारे हमको लेने गए थे वहां मालदा में, वो कह रहे भी चाय आ रही है, 1.5 घंटा होने वाला है चाय हुआ है। अल्लाह आपको एक और नेक बीवी अता फरमाए।
नहीं पिए, पीते रहेंगे। सही दुआ है ना? नहीं, जिसकी 2 बीवियां उनसे पूछो। चलिए, कोई अलान? আসসালামু আলাইকুম। বলছিলাম গাঙ্গেয়ত্র মাদ্রাসা ছাত্ররা বাইরে থাকবে, আপনারা যারা যারা ইচ্ছুক আছেন দান দেওয়ার জন্য আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবেন। আমাদের মোহাম্মদ সাহেব আপনাদের কাছে দান চাইবেন না, উনি বক্তব্য রাখবেন, যার জন্য আপনারা যারা দান দিতে ইচ্ছুক সেটা দিয়ে দেবেন। हमें बंगला बुझते पारबेन किंतु बोलते पारबेन ना। सब समझ गए, दान वान दीजिए, मौलाना के हाथ में दीजिए दीजिए, वो सब हम समझ में आ रहा हमको, लेकिन बस हम बोल नहीं पाते। दिक्कत ये है। नहीं पीते जाएंगे सब। तो सुनिए, अजान हुई फजर में और सोया हुआ है, बीवी उठा रही है, उठो। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं। शायद रमजान में हम तो आते नहीं है यहां, इसलिए ये आपको रमजान में बहुत काम आएगा ये वाकया। देखिए, अल्लाह का डर नमाज से ज्यादा रोजा पैदा कर रहा है। सहरी खाई, लेट गए, अजान हुई, बीवी ने कहा चलो उठो नमाज तो पढ़ के आओ। अरे रोजे से हो, सहरी किए हैं, नींद आ रही है, नहीं पढ़ी नमाज। 8 बजे उठे, अब नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जोहर की नमाज पढ़ के आए, बीवी ने खाना लगा दिया, लो खाओ। अरे पागल है क्या, मैं रोजे से हूं। कैसे मालूम? अरे मैंने सहरी की थी कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ तो रोजे से हो तो क्या मतलब, खाना खा लो, कोई देख थोड़ी रहा है, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। अरे पागल है क्या, नहीं खा लो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लो चुपके से खा लो। अरे किसी को बोलने की बात नहीं, मैं रोजे से हूं। अरे अल्लाह तो देख रहा है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, जब तू फजर की नमाज पढ़ने नहीं गया तब अल्लाह नहीं देख रहा था क्या? जब अजान की आवाज सुनी तू मस्जिद के अंदर तब नहीं गया, अपनी बीवी से बोला थोड़ा नींद आ रही है, उस वक्त तुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है? अल्लाह का डर क्यों नहीं? आज तू क्यों नहीं खा रहा? नहीं साहब, अल्लाह देख रहा है। आखिर वक्त तक नहीं खा रहा है, बीवी मायके, बच्चे स्कूल, घर में कोई नहीं, फ्रिज में सब कुछ रखा है, माँ बाप भी नहीं देख रहे हैं, अकेले घर में रोजे से है आप, लेकिन फ्रिज खोलते हो, पानी की बोतल उठाते हो, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं, कोई नहीं देख रहा है, इसके बावजूद नहीं पी रहे हो, क्यों? अल्लाह तो देख रहा है। नमाज से ज्यादा रोजे ने अल्लाह का डर पैदा किया, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? मेरे बंदो, ये रोजा मेरे लिए और मेरे बंदे ने ये रोजा मेरे लिए रखा था, इसलिए कयामत के दिन रोजेदार बंदों को इनाम भी, गिफ्ट भी मैं अपने हाथ से दूंगा। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। अल्लाह के बंदे, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी? रोजा अल्लाह के लिए था, तो क्या नमाज अल्लाह के लिए नहीं? हज अल्लाह के लिए नहीं? ज़कात अल्लाह के लिए नहीं? लेकिन अल्लाह ने रोजे को क्यों कहा? क्योंकि नमाज की पोल खुल सकती है, ज़कात की पोल खुल सकती है, हज की पोल खुल सकती है, लेकिन रोजे की पोल नहीं खुल सकती जब तक कि बंदा खुद ना बताए। छुपा है तो छुपा है, हम और आप समझ रहे, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, रोजे का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से, इसलिए इनाम भी डायरेक्ट अल्लाह देगा। तो रोजा अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ ज्यादा पैदा करता है नमाज से। तो नमाज में तकवा होना चाहिए, रोजा भी इसीलिए फर्ज किया गया ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा हो जाए, हम अल्लाह से डरने वाले बन जाए। आइए एक और चीज बता दूं, हज में भी तकवा है, हज में भी तकवा है। क्या है? एक मैदान में जमा है, अमीर और गरीबी का फर्क मिट गया, एक लिबास में, सब सफेद एहराम में, कोई इंडोनेशिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई हिंदुस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई मराकश का है, कोई लबनान का है, कोई लीबिया का है, कोई उर्दू का है, कोई अलजायर का है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई तुर्की का है, कोई मिस्र का है,
कोई जो है शाम का है, सीरिया का है, कोई अलग अलग कंट्री के लोग आए हुए हैं। मेरे भाइयों, सारे के सारे लोग 9 तारीख को अरफात के मैदान में जमा हैं। जिस साल मैं हज के लिए गया था अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को लेकर, उस साल 40 लाख की भीड़ थी। उस साल 40 लाख की भीड़ थी। अब नहीं मालूम कि भीड़ में कितना इजाफा हो रहा है। 40 लाख का मजमा, नजर डाल रहा हूं तो मैदान महशर नजर आ रहा है और सब एक जबान चीखते हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक क्या है? ये लब्बैक पुकारना क्या है? लब्बैक का मतलब हाजिर हो, लब्बैक का मतलब मैं हाजिर हूं। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में जाकर जज के सामने कह रहा है कि मैं हाजिर हूं, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, मैं भाग नहीं सकता हूं। भारत की जमीन छोड़कर मैं भागूं तो कहां भागूं? ये जमीन हमारे लिए छोटी पड़ गई है। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 10 दिन के अंदर अंदर अगर सरेंडर न करे तो शूट कर दो, उसको गोली मार दो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक आदमी है मुजरिम में कोर्ट में आके शरण लेता है, जज के सामने कहता है कि मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया। ये पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे से जाने वाला एक मुसलमान 40 लाख का मजमा आज कह रहा है कि अल्लाह तेरी बनाई हुई जमीन से हम गुनाह करके भाग नहीं सकते हैं। हम अपने गुनाहों का बोझ अपने सर के ऊपर लाद कर तेरे दरबार में हम आए हैं। आय अल्लाह, मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया है, मैं सरेंडर हूं। आय अल्लाह, आज अगर तूने मेरे गुनाहों को माफ न किया तो कौन मेरे गुनाहों को माफ करेगा? ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह आसमान दुनिया पर आ जाता है, अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है और फरिश्तों से कहता है, आए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया है। ऐसे हमने अपने कुछ बंदों के गुनाहों को धो दिया है, जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, जैसे मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है, वैसे ही मैंने आज अपने बंदे को गुनाहों से पाक कर दिया है। आज मैंने अपने बंदों के गुनाहों को मिटा दिया है, तुम गवाह रहना। मेरे भाइयों, इस हज का ताल्लुक भी तकवे से है, क्योंकि वहां अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है। अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है। हम क्या किसी के लिए कुर्बानी देंगे? हम क्या किसी के लिए कुछ सोचेंगे? फिलिस्तीन का हाल देख ही रहे हैं आप, इजराइल का जुल्म देख ही रहे हैं आप। और आपको याद होगा जिस वक्त इजराइल बमबारी कर रहा था और फिलिस्तीन के मासूम और दूध पीते बच्चों की लाशें बिछ रही थी, माओं की कोखें उजड़ रही थी, आप फिलिस्तीन के हालात पर जायजा लें। कैसे बुलडोजरों से जमीन खोदी जा रही है और एक ही साथ 40-40 और 50-50 लाशें एक ही गड्ढे में लाइन से रख दी जा रही है। ऊपर से सिर्फ एक पॉलीथिन डाल दी जा रही है और उनको ऊपर से मिट्टी डाल दी जा रही है। और जिस वक्त इजराइल फिलिस्तीन के मासूम, बेबस और नौनिहाल बच्चों को यतीम कर रहा था और बच्चों की जानें ले रहा था, औरतों की जानें ले रहा था, उस वक्त भारत का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। हाँ, उस वक्त बंगाल का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। हाँ, मुझे ये कहने में भी कोई सरोकार नहीं, ये चाचल और उसके अतराफ के लोग भी उस वक्त वर्ल्ड कप देख रहे थे। ये इतिहास में लिखा जाएगा, आने वाली तारीख में, हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जिस वक्त इजराइल बमबारी कर रहा था और मासूम बच्चों की जानें ले रहा था, उस वक्त ये बेहिस कौम, ये बेहिस कौम, ये जमीन फरोश कौम, ये मतलब परस्त लोग
मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं 19 नवंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप था। 19 नवंबर को आप अंदाजा लगाइए, 19 नवंबर को हमारा प्रोग्राम इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की वजह से भीड़ नहीं हो पाई, जलसे में लोग नहीं आ पाए, जलसा नाकाम हो गया इलाहाबाद का। 19 नवंबर का जलसा सिर्फ इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि वो वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच का वक्त था और मुसलमान मैच देख रहे थे। ये चीज इतिहास में लिखी जाएगी, हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि जिस वक्त इजराइल अपने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा था और फिलिस्तीन के लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे और जामे शहादत नोश कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि हम इतने सेल्फिश हो जाएं, हम इतने खुदगर्ज हो जाएं। तकवा हमारी जिंदगियों में आना चाहिए। हज में भी तकवा, कुर्बानी में भी तकवा। ये कुर्बानी जो हम और आप करते हैं ना, क्या है ये? क्या गोश्त खाने के लिए कुर्बानी की जाती है? नहीं, कुर्बानी का मकसद ये बताया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, इस कुर्बानी के जानवर का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं आता। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम जो कुर्बानी करते हो उस कुर्बानी के जानवर का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं आता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह कहता हम तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। अल्लाह डर देखता है, ये नहीं देखता कि तुमने 20,000 की कुर्बानी की तो किसने 50,000 की, ये नहीं देखता। तकवा देखता है, परहेजगारी देखता है। या तकवा खत्म हो जाता है कब? बकरा लेके आए, खस्सी किसके लिए लाए हो? कुर्बानी के लिए। क्या करेंगे? कुर्बानी देंगे मौलाना साहब। अच्छा जी, कितने का लाए हो? 20,000 का। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। मौलाना जर्जी साहब ने दुआ दी। दूसरे दिन देख रहा हूं उसने कुर्बानी के जानवर का फोटो फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया। फेसबुक पे डालने के बाद लोग पूछ रहे हैं माशाअल्लाह कितने का है? 20,000 का। इसको देखकर दूसरा आदमी कह रहा अच्छा तो 20 का लाया तो मैं 25 का लाऊंगा। अपनी सारी नेकी खत्म कर दी। उम्रा करने गया, खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहा, फेसबुक में डाल दिया। आप कहां हो? काबा। क्या कर रहे हो? उम्रा। दुआ करो। अरे अल्लाह के बंदे, तू खुद ऐसी जगह पर पहुंचा हुआ है जहां दुआ तेरी कबूल होगी। तू हिंदुस्तान के लोगों से कह रहा है कि तुम कबूल करो। तूने अपनी नेकी बर्बाद कर ली, जाहिर करके कि देखो हम उम्रा करने आए हैं, उम्रा करने। अभी जलसा खत्म होगा ना, अभी देखिएगा कुछ सेल्फिश लोग अभी खड़े होंगे, मौलाना जर्जीस के साथ सेल्फी लेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे। क्या मैं कल जलसे में गया था, मौलाना जर्जीस से मिलके आया था। जन्नत में नहीं जाओगे ये सब करके? क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाएगा। किसी चीज का नाजायज इस्तेमाल जायज नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल जायज नहीं है। ये फोटो सिर्फ पासपोर्ट के हद तक ठीक था, आधार कार्ड के लिए ठीक था। ये फोटो सिर्फ पैन कार्ड के लिए ठीक था, जरूरत के तहत आप ले लें, ठीक था। लेकिन इन कैमरे के फोटो का ऐसा रवाज चला, उठने का, बैठने का, लेटने का, खाने का, किसी को अपने घर पे बुला रहे तो उसकी भी वीडियो बना रहे, देखो हमने फला मौलाना को देशी मुर्गा खिलाया है, हमने उसकी भी वीडियो, हमने ये खिलाया है, रोजा इफ्तार करा रहे हैं तो फोटो है,
हर जगह हम फोटो लेकर ज्यादती किसी चीज की, मेरे भाई, जो जायज नहीं है इस्लाम के अंदर, ये सब चीजें हराम हैं। मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, मैं हराम बोल रहा हूं, ये सारी चीजें हराम है, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। जरूरत के तहत तो ठीक है, लेकिन बिला जरूरत आप क्यों किसी की सेल्फी लेंगे, क्यों किसी के साथ फोटो लेंगे, क्यों किसी का आप फोटो खींचेंगे, क्यों आप अपने आप को भी गुनाह में डालेंगे और दूसरे को भी गुनाह में डालेंगे। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर तकवा के मौजू को उठाया है। तो कुर्बानी के अंदर भी तकवा है। ये कुर्बानी का जानवर का गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, ये तकवा देखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तकवा मेरे भाइयों, हर चीज में तकवा, हर इबादत में तकवा। अल्लाह ये भी नहीं देखता कि तुम कितने खूबसूरत हो, माशाअल्लाह बॉडी कितनी अच्छी है, सलमान खान की तरह हो कि नहीं हो। क्या करूं, यही एक्टर, बॉडी जब नाम आती है तो यही एक्टर ज्यादा चलता है, क्योंकि बताया है लोगों ने कि वो कोई फिल्म उसकी ऐसी है ही नहीं, कोई मूवी जिसमें उसने शर्ट न उतारी हो। ठीक है, होता कुछ लोगों को नंगा होने का शौक। हमने तो बंबई के किसी प्रोग्राम में कहा था कि वो पैंट भी उतार दे, पूरी तरह जैनी बन जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है। तो मेरे भाइयों, होता है बहुत से लोगों को शौक होता है। तो अल्लाह ये नहीं देखता, ये नहीं देखता कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, अल्लाह शक्लें भी नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नजर नहीं डालता, तुम्हारी शक्लों को भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने गोरे हो, कितने चट्टे हो, तुम्हारी बॉडी कैसी है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। मक्के की सरजमीन पर, मदीने की चलती हुई सड़कों पर सबसे ज्यादा काला कलूटा अगर कोई आदमी है तो उसका नाम हदीस की किताबों में बिलाल के नाम से आता है, जो बहुत ही ज्यादा काले थे। हदीस की किताबों में कलहुमा का लफ्ज आया है, यानी कोयले से ज्यादा काले। लेकिन देखो, अल्लाह के नबी ने आजान देने का शर्त उन्हीं को दिया है। वो खाने काबा के दरो दीवार पर खड़े होकर आजान दिया करते थे। ये बिलाल हबशी है। मदीना में जाने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं निकाह करना चाहता हूँ, शादी की ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि निकाह करूँ। ये काला कलूटा इंसान, हबशी नस्ल इंसान, अफ्रीका के जंगलों का रहने वाला इंसान, मक्के मदीने की सरजमीन पर निकाह का इच्छा, निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता है। तो मदीने के बड़े बड़े अंसारियों ने, बड़े बड़े अमीरों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और कहने लगे, बिलाल आओ, आए बिलाल आओ, मेरे घर में आ जाओ, पानी पी लो, मेरी बेटी पानी लेकर तुम्हारे पास आएगी, मेरी बेटी का चेहरा देख लो, मेरी बेटी के हाथ की हथेलियां देख लो। आए बिलाल, मेरी बेटी सलाम करने आपसे पास आएगी, आप मेरी बेटी पर नजर डाल लो, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। अरे बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। हजरत बिलाल ने या निकाह की ख्वाहिश, निकाह की, शादी की इच्छा जाहिर की थी कि अरब के बड़े बड़े अमीरों ने और रईसों ने अपनी बेटियों का पैगाम देना शुरू कर दिया। वो लोग शक्लो सूरत नहीं देखा करते थे, वो ये देखा करते थे कि बिलाल के अंदर तकवा क्या है, बिलाल अल्लाह वाला कितना है, नमाजी कितना है, अल्लाह से डरता कितना है। इसलिए कि मदीने के लोगों ने ये सुना था, अल्लाह के नबी ने कहा था, ऐ बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो, ऐसा कौन सा काम करते हो। मैंने देखा जन्नत के अंदर, जब मैं जन्नत में गया, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। मेराज के मौके पर मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है, यानी मुझे बिलाल तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत में सुनाई दी। यानी अल्लाह ने मुझे बता दिया कि बिलाल को मैं जन्नत देकर रहूंगा। समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज सुन लो। हजरत बिलाल इतना अमल किया
सुन्नत ने सुनी। सहाबा जानते थे इस नेक आदमी के अगर निकाह में मेरी बेटी चली गई तो मेरी बेटी भी जन्नती हो जाएगी, मेरी बेटी भी जन्नत जैसे अमल करने लगेगी। हम क्या देखते हैं शादियों में? अपने समाज, अपनी सोसाइटी पर गौर करें, क्या देखते हैं हम अपने? हम तो ये भी नहीं देखते हैं कि अपनी बेटी की शादी हम कर कहाँ रहे हैं। मेरी बेटी शादी के बाद फला के घर में जाएगी, मौत तो उसको भी आएगी। हम ये भी नहीं देखते कि वो लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मेरी बेटी उस घर में जाएगी, अगर मौत आ गई तो मेरी बेटी की वहां नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। भाई जहां जा रही है वही तो पढ़ी जाएगी। जब वहां जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, वो लोग नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना। सूरह फातिहा न इमाम पढ़ेगा न मुक्तदी पढ़ेंगे। और हमारा अकीदा तो यह है, हमारा ईमान तो यह है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। कोई भी नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, जमात के साथ हो, अकेले हो, इनफिरादी हो, इज्तिमाई हो, जनाजा हो, ईद की हो, बकरा ईद की हो, कसूफ की हो, खसूफ की हो, सूरज ग्रहण की हो, चांद ग्रहण की हो, कोई भी नमाज हो जिस नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी वो नमाज नहीं होगी। हमने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में ऐसे घर में भेज दिया, मरने के बाद गोया कि उसको बगैर जनाजे के दफन कर दिया गया है। हम अपनी बेटी की आखिरत भी नहीं देखते, हम अपनी बहनों की आखिरत भी नहीं सोचते। मेरे भाइयों, ताज्जुब का लिबासा उतार के जरा अपनी बहनों बेटियों के रिश्तों के बारे में सोचो कि हमारी बेटियों की और बहनों की शादी हम कहां कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी देखी है, अच्छा रोजगार देखा है, लड़का इंजीनियर देखा है, दुनियादारी तो देख ली, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरी बेटी मरेगी तो उसका जनाजा पढ़ा भी जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। हम नहीं देखते। आप बेटियों के और बहनों के सही बाप नहीं है, सही भाई नहीं है। आप उनकी दुनिया को देखते हैं लेकिन आखिरत नहीं देखते हैं। हम क्या करेंगे? सुलेमान इब्ने यसार का वाक़या आपने सुना है, कितने बड़े ताबई गुजरे हैं। सुलेमान तैमी इंतकाल के वक्त रोने लगे। लोगों ने पूछा, एक दिन तो सभी को जाना है, आंखों में आंसू क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सुलेमान तैमी का जवाब था, आज मैं अपने एक गुनाह को याद करके रो रहा हूं, जो गुनाह मुझसे 25 साल पहले हुआ था। 25 साल से मैं तौबा कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया है या नहीं किया। लोगों ने पूछा, वो कौन सा गुनाह है? सुलेमान तैमी का जवाब सुनो। लोगों ने पूछा, वो कौन सा गुनाह है जो तुम आज याद कर रहे हो? अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। शिर्क न किया हो तो अल्लाह माफ कर देगा, और शिर्क भी किया है तो फिर से आप कलमा पढ़िए और असरे नौ ईमान ले आइए, अल्लाह माफ कर देगा। शिर्क की हालत में मौत अच्छी नहीं है। कहा शिर्क तो नहीं किया है, कहा फिर क्या गुनाह है? सुलेमान तैमी जवाब देते हैं, आज से 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। गुनाह देख रहे हैं क्या था? मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को सलाम करे, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर में ठहराए, अल्लाह की लानत तो उस पर जो किसी बिदाती को अपने घर में पनाह दे। अल्लाह के नबी ने बिदातियों को अपने घर से दूर रखा है, उनको सलाम करने से मना किया है। हाँ, मुझसे गलती हो गई, 25 साल पहले मैंने एक
बिदाती को सलाम कर लिया था। मैं उसकी तौबा करते करते 25 साल से तौबा कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे रब ने मुझे माफ किया होगा या नहीं। सिर्फ बिदाती को सलाम किया तो इतना रो रहे हैं, 25 साल से तौबा कर रहे हैं। ऐ नौजवानों जरा सोचो, जिन्होंने अपनी बेटियां ही बिदअतियों को दी हो, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी बहनें ही बिदअतियों को दी हो, आज किस मुंह से वो अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं? किस मुंह से आज वो कुरान और हदीस के कहने वाले कहलवाते हैं? आज कैसे कहते हैं कि हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हम पक्के अहले हदीस हैं? यहाँ बिदअती को सलाम कर लिया तो 25 साल से नींद नहीं आ रही है। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल भी की होगी या नहीं की होगी। उन लोगों को नींदें कैसे आ जाती हैं जिनकी बेटियां आज बिदअतियों के पास पल रही हैं, जिनकी बेटियां बिदअतियों के घर में रह के शिरक कर रही हैं, उनके माहौल में ढल गई हैं। मेरे भाइयों, अभी तो बिदअतियों के माहौल में डली है। अगर हमने अपनी बहनों पर और बेटियों पर पर्दे की पाबंदी न की है, अगर दीन की तालीम से दूर, अगर हमने दीन की तालीम से करीब नहीं किया है, तो हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के माहौल में रहेंगी, सिंदूर भी लगाएंगी, चुटकी भी पहनेंगी, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे भाइयों, बहुत हद तक हो भी चुका है। कितनी लड़कियां सोशल मीडिया पे देख लो, आज फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में देख लो, जो आज मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों के निकाह में आ चुकी हैं, और आज वो अपने ही घर वालों को गालियां दे रही हैं, सिंदूर लगा लगा के दिखा रही हैं, चुटकियां पहन पहन के देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के पूजा करते हुए वीडियो बना रही हैं और दिखा रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल के हमें चिढ़ा रही हैं, हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अगर हमने अपनी बेटियों के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा नहीं किया, इनको अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कों से अलग सिर्फ गर्ल्स कॉलेजों में अगर नहीं भेजा और लड़कों के साथ अगर बैठ के पढ़ाया, तो हमारी बेटियां दूर नहीं जो गैर मुस्लिमों के पूरे कल्चर में ढल जाएंगी, और हमको खून के आंसू रोना पड़ेगा, ये दिन हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ से पूरी आजादी है कि तुम इनकी बहनों को, इनकी बेटियों को प्यार और लब के चंगुल में ढाल लो, इनको उसमें पूरी तरीके से शामिल कर लो, और जब ये तुम्हारे प्यार में अंधी हो जाएं तो इनको लाओ और किसी मंदिर में ले जाकर इनसे निकाह कर लो, और 2-3 बच्चे जब पैदा हो जाएं तो छोड़ दो, और बच्चों को अपने पास रख लो और इनको छोड़ दो। अब ना इनका बाप इनको अपने घर में जगह देगा, ना इनको ससुराल में जगह मिलेगी। अब ये किसी कोठे पर जाकर तबाइश बनेंगी, और अपने जिस्म को बेचने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। कि हमें अपनी जिंदगियों को देखना है। हमारी बहनें सोचें कौन सा तकवा है। कल तक हमारी बेटियों और हमारी बहनों के इन खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। कल तक हमारी बहनों और हमारी बेटियों के खूबसूरत चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। आज इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए इनकी जीन्स, इनके पैर, इनकी लान और इनके सरों से उतरे हुए दुपट्टे और खुले हुए बाल और इनके चुस्त ड्रेस, टाइट कपड़े, आज जो चाहे देखना देख ले। मेरे प्यारे साथियों, आज इतने सस्ते हो चुके हैं उनके जिस्म कि आज चंद रुपया कमाने के लिए ये इस हद तक गिर गई हैं कि इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर अपनी वीडियो बनाती हैं और सरों से दुपट्टे गायब हो चुके हैं। हजरत फातिमा ने कहा था, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन में नहीं रात में दफनाने जाना, रात में कब्रिस्तान ले जाना। हजरत अली ने पूछा क्यों? दिन में क्यों न दफनाऊं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा ने कहा था, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म और उस पर पड़ा हुआ कफन, कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि उस कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। अंदाजा लगाइए, हजरत
फातिमा के इस कॉल पर हमारी बहनों, हमारी बेटियों कितनी आसानी के साथ तुम इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हो, चंद रुपया कमाने के लिए अपना जिस्म दिखा देती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज क्या हरकत है आपको मालूम है? अमेरिका ने एक ड्रेस बनाया है, स्विमिंग ड्रेस। लड़की उस ड्रेस को पहनकर सिर्फ अपने बाथरूम में नहा सकती है, बस बाथरूम में। हालांकि औरतें अमूमन कपड़े उतार कर ही गुस्ल करती हैं बाथरूम में, लेकिन अमेरिका ने जो ड्रेस बनाया है वो इतना बारीक है कि वो लड़की सिर्फ उस ड्रेस को पहनकर, जिनमें शावर लगा हुआ है बाथरूम में, वो छोड़ के उसके नीचे खड़े होकर वो नहा सकती है, बस पहनकर। उसको वो बाथरूम में ही पहन सकती हैं। बाथरूम में नहाने के बाद उसको बाथरूम ही में उतार के दूसरे कपड़े चेंज करके वो बाहर निकल सकती है। यानी इतना बारीक, इतना खराब कपड़ा है, लेकिन वो लड़कियों के लिए बनाया है। इसको पहनकर सिर्फ बाथरूम में जाकर वो गुस्ल कर ले, नहा ले। जानते हो, इस ड्रेस को बॉम्बे की एक लड़की ने पहनकर अपने घर से सीधे निकलती है, अपनी स्कूटी चलाती है और उस स्कूटी से अकेले उस कपड़े को पहनकर जुहू चौपाटी आती है और जुहू चौपाटी के समंदर के पानी से वो नहाती है और उसी ड्रेस को पहनकर वो अपने घर जाती है। अफसोस इस बात पर नहीं है, अफसोस इस बात पर है कि वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने वाली गैर मुस्लिम लड़कियां भी उस ड्रेस को पहनकर निकलने से तौबा करती हैं। नहीं पहनी है। इस ड्रेस को पहनकर निकलने वाली एक लड़की मुसलमान की लड़की थी, और मुसलमान की नहीं, अफसोस इस बात का है कि वो एक हाजी की बेटी थी। जरा आप अंदाजा लगाएंगे हम कहां जा रहे हैं, हमारी तहजीब कहां जा रही है। और मीडिया चीखती आजादी, आजादी। अरे तुम अपनी बहनों को नंगा घुमाओ हमारी बला से, लेकिन हम अपनी बहनों के लिए अगर पर्दे की बात करते हैं तो तुम्हारी नानी क्यों मरती है? तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हारी अम्मा की अर्थी क्यों उड़ती है? सानिया मिर्जा के लिए बहुत कुछ तुमने वाबेला किया, बहुत कुछ वाबेला किया। आज भी तुम उसके पीछे पड़े हो। अब आज वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, उसकी अपनी जिंदगी है, आज भी तुम उसको जीने नहीं दे रहे हो। कल तक उसके फेवर में आके कहते थे, हमसे मसला पूछते थे, साहब सानिया मिर्जा जो कपड़े पहनती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। सानिया मिर्जा स्कर्ट पहन के खेलती है, आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं? मैंने कहा भाई उसका नाम क्यों ले रहा है तू? मैं बोल रहा हूं इस्लाम में पर्दा है। नहीं, सानिया के बारे में बताओ। मैंने कहा मैं किसी न सानिया न बानिया मैं किसी को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस्लाम में पर्दा है। साहब अगर वो स्कर्ट पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है? हमने कहा तेरी बहन नंगी भी घूमे, हमें उस पर भी एतराज नहीं है। बड़ा बदतमीज है। हमने कहा बस हो गया, हो गया। हमने कहा तुम अपनी बहन को नंगा घुमाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? स्कर्ट भी मत पहनाओ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? यही कलिया चक भी आया था इंटरव्यू लेने के लिए हमसे, यही कलिया चक की बात बता रहा हूं, है आया था। मैंने यही कहा था तुम अपनी बहन को स्कर्ट भी मत पहनाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? भाई जैनियों के बाबा नंगे घूमते, मेरे बाप का क्या जा रहा है? हम तो ये बताएंगे ना कि इस्लाम में पर्दा है। मैं तो ये बताऊंगा कि हिंदू धर्म में भी पर्दा है। राम की पत्नी सीता जी ने भी पर्दा किया है और उनका चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यानी सीता जी के देवर ने भी नहीं देखा है। और देवर ने जब नाक की नथुनी मिली तो कहा था हनुमान से ये नथुनी किसकी है? तो हनुमान जी बोले कि मैं नथुनी नहीं पहचानता हूं। लक्ष्मण बोले मैं नथुनी नहीं पहचानता हूं। ये चप्पल पहचान गया, दुपट्टा पहचान गया, चूड़ी पहचान गया, कपड़ा पहचान गया, ये मेरी भाभी सीता का है, लेकिन नथुनी नहीं पहचान पाया। क्यों? कहा कि मैंने नथुनी तो नाक पे होती है ना, और नाक चेहरे पे होती है, मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा है। और जब हमने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा तो मैं कैसे बता
बता दूं कि नथुनी मेरी भाभी की है। गौर करो, देवर और भाभी का पर्दा ये वाल्मीकि रामायण में आज तक लिखा हुआ है। यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी देवर के बारे में क्या ख्याल है? हम हर उस रिश्ते को कहते हैं, देवर भी शामिल है, जेठ भी शामिल है, समझ रहे हैं आप, और साली के लिए बहनोई भी उसी में शामिल है। ये सब हम के अंदर आते हैं। अराइतल हम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपका ये देवर जेठ बहनोई इनके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम वो मौत, ये रिश्ते तो मौत है, मौत। एक औरत अपने देवर से भी पर्दा करेगी, अपने शौहर से छोटे भाई से भी, और एक औरत अपने जेठ से भी पर्दा करेगी, यानी अपने शौहर के बड़े भाई से भी पर्दा करेगी। ये सब नहीं चलेगा। भाभी मां समान है, वो तुम्हारी खोपड़ी में है। इस्लाम में मां समान नहीं है, इस्लाम में मौत है, देवर भी और जेठ भी। और साली भी बहनोई से पर्दा करेगी। और सच तो यह है कि अपनी बीवी के साथ भी खाना खाते वक्त साली को अपने पास नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि साली का पर्दा है आपसे। बीवी कह रही है मेरी बहन को स्कूल छोड़ दो, बीवी की परमिशन के बाद भी शौहर अपनी साली को, बीवी की परमिशन के बाद भी कोई बहनोई अपनी साली को अकेले अपनी गाड़ी पर बिठाकर न स्कूल छोड़ सकता है, न बाजार ले जा सकता है, न मालदा घुमा सकता है, न नुमाइश मेला ले जा सकता है। चाहे दामाद का ससुर क्यों ना कह रहा हो मेरी बेटी को ले जाओ, आपका ससुर परमिशन दे सकता है, आपकी बीवी परमिशन दे सकती है, साली भी राजी है, लेकिन इस्लाम की परमिशन नहीं है। कहां पढ़े हैं आप? भाई कह रहा है भाभी को मैके से ले आओ। मान लो मैं अपने छोटे भाई से कहूं कि जाओ मेरी बीवी को नहीं अपनी भाभी को मैके से ले आओ, मेरी परमिशन है, भाई जा रहा है, मेरी बीवी को भी एतराज नहीं, मैं राजी, भाई राजी, मेरी बीवी भी उसके साथ आने को राजी, मेरे बाप को भी एतराज नहीं, मेरी मां को भी एतराज नहीं, मेरी बीवी के मां और बाप को भी एतराज नहीं, उसके भाइयों को भी एतराज नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद इस्लाम को एतराज है। कहां पढ़े हैं आप? इतना आसान नहीं है। आप ससुराल में सास के सामने आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने साले की बीवियों के सामने आप नहीं जा सकते। आपके साले की बीवियों को पर्दा करना होगा आपसे। घर में सालियां हैं तो सालियों को इजाजत नहीं कि बहनोई के बिस्तर पे बैठ जाओ मजाक करें। यहां तो तसव्वुर है साली तो आधी घरवाली है, ये तुम्हारी खोपड़ियों में बैठा होगा। अगर तुम अपनी साली को आधी घरवाली समझते हो तो आपकी बहनें भी किसी की साली होंगी, आपका बहनोई भी उसको आधी घरवाली समझेगा। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा रास्ता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा, ये इस्लाम ने कहा बहुत गंदा रास्ता है। रास्ता जानते हो क्या कहा? यानी ये वो सड़क है जो सड़क इतनी गंदी है कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे तो लथपथ हो जाओगे गंदगी में, सड़ जाओगे, भर जाओगे उस गंदगी के अंदर। मेरे भाइयों, 12:40 तक आपने मेरी लाज रख ली। 2 घंटे के खिताब को, पौने 2 घंटे के खिताब को आपने सुन लिया। मुझे तो कहा था कि 10 बजे आपको टाइम दे देंगे, फिर 10:30, फिर पौने 11 तक हो गया, लेकिन चलिए आपने मेरी लाज रख ली। ये चंद बातें जो मैंने बुनियादी तौर पे बताई हैं, इनका लिहाज रखिएगा और तकवा पैदा कीजिएगा अपनी जिंदगी के अंदर। नमाज पढ़ते जा रहे हैं, साली को गाड़ी में बिठाते जा रहे हैं, बेकार है।
नमाज पढ़ते जा रहे हैं और भाभी के साथ मार्केट घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने क्या कहा? फिर वही मेरी बात, बुराई को रोको और नेकियों से ज्यादा बुराई को पर कंट्रोल करो, इसलिए कि नेकी करने का हुक्म है और बुराइयों को पूरी ताकत के साथ रोकने का हुक्म है। इसलिए इन बुराइयों को रोकोगे तो नेकियों के काम में आगे बढ़ोगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तकवे की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में तकवा पैदा फरमा दे, हमें हमारी बहनों को बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, इस्लाम हमारी जिंदगियों में बसा दे, रच दे, इस्लाम हमारी रगों में दौड़ा दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी जान और अपने माल से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बारे अल्लाह